Okay, so good afternoon, everyone. So all of you have taken up marketing as a DSC, I suppose. Okay, so we'll be talking about the Salesforce management. We have had one online class if you have attended, but nevertheless, we'll begin again since this is an offline class. So, any idea as to what is a Salesforce? What do we do in a Salesforce? What is sales? What is personal selling? Any idea, anyone? Salesforce, you are saying, is a CRM process, is it? CRM process. What else? What is sales and why is it so important? A discipline, a subject in marketing that we need to go through it. We need to understand the nuances of sale. How do we do sales? Targeting the audiences, okay? Specific market. Anyone else? Company growth, okay? So ultimately, Salesforce would be leading to the company growth. What else? What? Convert your leads into opportunity, yes. So basically, Salesforce management in this subject we are going to talk about in the initial units. We are going to talk about कि Salesforce होता क्या है, basic terms, types of selling, वो सब करेंगे. उसके बाद आने वाले terms में, because all of us know that managing people, motivating people to do a certain kind of work, to do a teamwork, it is more difficult than rather selling a product through an online media or social media and a digital media. So what steps, what are the ways, what are the different techniques of selling, what are the ways to keep your sales force motivated? So all these things we are going to cover in this subject, because whenever you are into a marketing job, whenever you are into a marketing profile, sales force, managing the sales force, getting the sales done, it is the prime objective of any organization, and it is the most difficult thing to do, because you have a set of people who are directly in touch with another set of people, that is your customers, and to keep them going, keep them motivated is the most difficult thing. So hence the need of this subject, that is Salesforce management. So again, a lot of studies, lot of research have been done, and in today's time we see जो हमारा Salesforce management हो गया है, that is all the more जो हम कहते हैं automated भी हो गया है, the use of different technologies. So earlier एक concept होता था Salesforce का, like the salesperson used to do the talking part. If I am the salesperson, I used to just tell about my product to the customer. So अभी research ने ऐसा बोला, और एक company है Microtech Semiconductors, Microchip Technology. So it is a semiconductors company which is headquartered in Phoenix. Okay, so they say कि जो easy functions होते हैं Salesforce के, like data collection, talking to people, that should be taken up by the automation part. The most difficult part, wherein there is a consumer, he is asking you questions. Salesforce one way नहीं होती कि just हम अपने product के बारे में बताते हैं और हमारा product sell हो जाएगा. We have a set of consumers who are again talking about our product, questioning our product. So the job of Salesforce has now all the more become complicated. Salesforce का ऑटोमेशन वाला पार्ट जो है कि लीड जनरेट करना है, डेटा मेंटेन करना है, डेली सेल्स रिपोर्ट बनानी है, that is all the more automated, and the difficult part is now with the salesperson, right? So that has to be managed, and how it has to be managed we're going to talk about in this unit. And there is another study, another research जिसने ये बोला, अभी तक ये कॉन्सेप्ट होता था कि सेल्स पर्सन जो होते थे they do a lot of talking, but there was a survey which said कि when there are customers, we are also customers at times, when we get a telecall or when we go to a salesperson, do we like a salesperson who are just talking one way, सिर्फ अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता जा रहे हैं, और do we like
people or salesperson who are a good listeners also. So listening, again, in today's time, there was a survey with a set of consumers, and it said that listening is an important skill that a salesperson should imbibe. Okay, so this is an overview as to what we are going to do in this subject, and now let us begin with the subject. Now, पहले हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं. मार्केटिंग मिक्स. What is a marketing mix? Can anyone tell me? What is a marketing mix? मार्केटिंग मिक्स इज द कोर ऑफ एनी कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. 4 P's जो हम बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ठीक है, सो वन एंड वी हैव अ मार्केटिंग मिक्स. Product, price, place and promotion. And on the other end, this is the core of your marketing strategy, right? This is the core. ये strategy हम build करते हैं principles of marketing में, और अपने third semester में भी ये सब चीजें पढ़ी होंगी. उसके बाद हमारा दूसरा एक important aspect of marketing क्या होता है? क्या बोलते हैं? Promotions किस mix के through हम करते हैं? We have a marketing mix. उस चीज को क्या बोलते हैं? What is that mix called? प्रमोशन मिक्स. ठीक है, प्रमोशन मिक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ माय प्रमोशन मिक्स? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशन मिक्स? एडवर्टाइजिंग. यस. Online marketing or digital marketing. What else? Pricing of the product will come here in the marketing mix, not a promotion mix. Attendance मैं लेती थी. ठीक है, सेल्स, प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग. पब्लिक रिले वो सेल्स प्रमोशन के अंदर आएगा. पब्लिक रिलेशंस. Then we have what? The last 5 elements. कौन से होते हैं? एडवर्टाइजिंग. प्रमोट कैसे कैसे करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को? एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट. लास्ट टाइम हमने इस पे थर्ड सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ा था. दैट वाज अ सब्जेक्ट, राइट? सेल्स प्रमोशन में हम डिस्काउंट्स, कूपन, ये सारी चीजें देते हैं जो आप बात कर रहे थे, रिबेट्स, शॉर्ट टर्म सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए कि हमारी शॉर्ट टर्म सेल्स बढ़ जाएं. डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑल द थिंग्स, SEO, SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग will come into digital marketing. Public relations, maintaining relations with the media houses, with the news channels, all these things would come under this. लास्ट कौन से तरह की मार्केटिंग, कम्युनिकेशन मिक्स का लास्ट एलिमेंट क्या होता है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इवेंट मार्केटिंग. सर उसको और ज्यादा हम प्रिसाइज लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नहीं, मोबाइल मार्केटिंग विल कम अंडर योर डिजिटल मार्केटिंग. पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग क्या होता है? व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, डोर टू डोर मार्केटिंग. आप शॉप में जाते हैं, आप मार्केट, देयर इज अ पर्सन हु इज सेलिंग यू द प्रोडक्ट. You are going, there is a person who is visiting you, there is a person who is calling you and asking you. So all the selling which happens in one person to the another person, जब दो customers आपस में physically interact कर रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं personal selling, and that is what the sales force management. So getting the crux, marketing mix है हमारा
मार्केटिंग मिक्स में हम कोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिफाइन करते हैं किसी भी कंपनी की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने सेमीकंडक्टर कंपनी का एग्जाम्पल लिया, उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही होगी, मार्केटिंग मिक्स रहा होगा, where they might have decided about the product, what is the type of semiconductors, what is the conductance, etc etc. क्या उसकी प्राइसिंग रहेगी, प्राइसिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग मिक्स। क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहेगा, प्लेस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हाउ इट रीचेस टू द कंज्यूमर्स। प्रमोशन, इसको हम प्रमोट कैसे करेंगे, प्रमोशन के भी डिफरेंट टेक्निक्स होती है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड पर्सनल सेलिंग। ऑल दीज फॉर्म अ गुड constitute of the promotion mix, but the most important, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, जिस चीज को the method which would help me to get the maximum amount of sales is your personal selling. How is personal selling different from public relations? How is personal selling different from public relations? Yes. Hmm. Hmm. Public relation is how the company manages their ideology or they are in a very public platform, just what to Yes. So public relation basically क्या होता है? For example, there is a product launch. So product के बारे में market में बताना है. There is a positive feedback, negative feedback, managing that, coordinating with the media houses for the various promotional activities. That is public relation. So that is at a wider level. When we talk of personal selling, there is a direct communication of your salesperson who is representing the company. He is talking about the product to the consumer. एंड सेल है, बिल्कुल आप डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर से ही बंदा कांटेक्ट कर रहा है। एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपने जो पर्सनल सेलर्स है, जो मेरी सेल्स फोर्स है, उसको प्रॉपरली ट्रेन करूं, उसको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, वो फेस हो कंपनी का, वो कंपनीज की वैल्यूज को, प्रोडक्ट को अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाए टू द कंज्यूमर्स। ओके, यस। Public relations, see, whenever we do a marketing or whenever we do any kind of promotions or whenever we are planning a marketing mix, सबसे पहले तो हमें अपना टारगेट मार्केट ही चूज करना है। तो जो भी हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज रहती हैं, दैट इज अराउंड माय टारगेट ऑडियंस ओनली, बिकॉज द कंपनी वुड नॉट स्पेंड अ ह्यूज मनी। टारगेटिंग, सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग पढ़ा था, उसका पर्पज ही क्या था कि मैं स्पेशलाइज सेगमेंट को, जो मेरा प्रोडक्ट है, उनको बेचूंगी तो मेरी कन्वर्जन क्या होंगी, ज्यादा होंगी हमेशा। यस, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये एंड कंज्यूमर है, जैसे हम फाइनल कंज्यूमर से कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द पर्सनल सेलिंग। और चाहे हम इंडियन मार्केट की बात करें, चाहे हम यूएस बेस्ड मार्केट की बात करें, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड जहां पे हम लीड्स ला सकते हैं, लीड्स लाने का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज थ्रू पर्सनल सेलिंग ओनली। एडवर्टाइजमेंट किसी ने देखा, ये प्रोडक्ट है, एक नया पेन आया है मार्केट में, आपने इसका एडवर्टाइजमेंट देखा सिर्फ, how many of you will be convinced by seeing an advertisement and go and buy this product? Very few होते हैं लोग कि बहुत ज्यादा, हमें उस केस में क्या होगा कि इसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होगी, उस प्रोडक्ट का कोई नया प्रोडक्ट आया तो मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के जाके खरीद लूंगी। डिजिटल मार्केटिंग भी सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारा नहीं है सेल्स पर्सन के थ्रू, हम ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, देन वी आर सेलिंग द इन्फॉर्मेशन। Public relations में are just talking about the product through media and all these things. Sales promotion में definitely हम जा सकते हैं जब हमें लगेगा कि हाँ डिस्काउंट्स हैं, कुछ है, तो प्राइस सेंसिटिव, अगर मेरी ज्यादा ओरिएंटेशन है, प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस, आई वुड गो। बट अगर मैं यही पेन, आप किसी स्टेशनरी शॉप पे जाओगे and there is a person who is selling this new product to you, he is telling you about the features of the pen, वो आपको यूज करके दिखा रहा है,
तो वहां पे आपके चांसेस ऑफ कन्वर्जन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस को जो आपका सेल्स पर्सन है उसको क्वेश्चन भी कर सकते हो एट द सेम टाइम. Ad is a one-way communication. It is a non-personal form of communication. Whereas personal selling is a personal form of communication. तो ये कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होती है, कस्टमर के लिए तो होती है. अब जो सेल्स पर्सन है आज के टाइम में अगर हम बात करें, इन दिस century where there is a lot of competition and every time the company has to be agile, the sales person have to be on their क्या कहते हैं on their foot कि एकदम से कुछ चेंज आया, तुम्हारा कॉम्पिटिटर आया और तुम्हारा प्रोडक्ट वुड बी कंप्लीटली आउट. So you have to be updated. You have to, जब हमने सारी बात की थी डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन याद है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? अलग, हाउ इट इज डिफरेंट. सो हाउ इज दिस पेन डिफरेंट फ्रॉम अनदर पेन विच वाज ऑलरेडी सेलिंग इन द मार्केट? ठीक है, हाँ, यूएसपी क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है. तो वो एड में तो कई बार बताते हैं और हमें समझ भी नहीं आता. कई बार एड्स इतने डिफरेंट होते हैं कि वी आर नॉट एबल टू कैच कि वो क्या बता रहे हैं. सो ये चीज जब हम पर्सनल सेलर के पास जाते हैं, वो आपको क्या करता है, थ्रू इट्स मोटिवेशन स्किल्स, थ्रू इट्स कन्विंसिंग स्किल्स, वो आपको बताएगा कि नहीं ये पेन में ये अच्छा है, ये शायद सस्ता है, इसकी इंक ज्यादा चलेगी, ये सूखेगी नहीं. तो दैट वुड हेल्प यू टू बाय द प्रोडक्ट. आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है. You tend to go and buy the product and you become a conversion just from a lead, just from a prospect to become a customer. Prospect और customer में फर्क पता है सबको? What do you say? Of differentiation and all this? See, अल्टीमेटली अगर इस पेन में ऑलरेडी एक पेन एग्जिस्ट कर रहा है, लेक्चर का पेन एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, आप एक कॉम्पिटिटर हो लेक्चर के, एबीसी कॉम्पिटिटर आपकी कंपनी का नाम है, एंड यू वांट टू एंटर दिस मार्केट एंड यू आर और प्रॉब्ली यू आर ऑलरेडी अ कॉम्पिटिटर व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. तो आपकी जो मार्केटिंग टीम होगी वो देखेगी कि हमारा प्रोडक्ट या तो स्टैग्नेंट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी, या तो वो स्टैग्नेंसी पे जा रहा है या हो सकता है इसकी सेल्स कम हो रही है. ठीक है, सो दे विल एनालाइज कि क्या रीजन हो सकता है कि द सेल्स आर डिक्लाइनिंग. ठीक है, सो दैट इज द वर्क ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. दे विल एनालाइज, कंपेयर विद द कॉम्पिटिटर्स कि क्या रीजन है, कि कॉम्पिटिशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग इफ यू हैव टेकन. सो उसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि हम अपने कॉम्पिटिशन से कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, हाउ डू आई एनालाइज द कॉम्पिटिशन. तो मेरे को समझ आया कॉम्पिटिशन को एनालिसिस करके कि यस, शायद मेरे पेन की ना इंक that gets dried up easily, और जो एक नया मार्केट में पेन आ गया, मेरा कंपटीशन आ गया, वो सस्ता भी है as compared to my pen and it works for a longer period of time. क्या आती है, हारेम्स आती है. हाँ, to project better. हाँ, so yes, that is what differentiation is about. So if I have identified, इनका क्वेश्चन था कि करता कौन है, तो आइडेंटिफिकेशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है. बट अगर इस पेन में मेरे को डालना है तो आपकी रिसर्च टीम, प्रोडक्शन टीम और उनको R&D को आप बताओगे कि ये इसमें शायद इंक अच्छी नहीं है, तो वो R&D का काम है, प्रोडक्शन टीम का काम है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द टॉप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने कभी पढ़ा होगा? बोलो. be in the market. तो वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव गिवन अप. नेक्स्ट में इसी पे आ रही थी, जब सेल्स फोर्स की हम बात करते हैं तो एक तो कंज्यूमर साइड से हो गया कि वी गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट. आई कैन राइट अवे क्वेश्चन. हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या होता है, हम वो हमारे को फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू गो एंड बाय अ साड़ी. ठीक है,
सो एट द सेम टाइम हम वो हमें 2-3 वैरायटीज ऑफ साड़ी दिखाता है कि ये 1000 की है, 2000 की है और 10,000 की है, तो हम एज इट इज उससे पूछ सकते हैं कि 10,000 वाली में क्या फर्क है. सो ही वुड से इसका कपड़ा बेटर है, इसमें जो काम हुआ हुआ दैट इज मोर ओरिजिनल, आर्टिसंस एंड वन एंड व्हाटएवर डिफरेंशिएशन. So that kind of thing as a consumer I cannot do when I am in a online media or I am in a digital media, right? But company के point of view से कैसे beneficial है Salesforce? कैसे है? Very good, very get the feedback and get the understand the consumer behavior. दो चीजें हैं, ठीक है. अब मैंने एक एड चलाया टीवी पे, कॉस्ट भी ज्यादा होती है, एड चलाया टीआरपी वगैरह के थ्रू आई कैन फाइंड आउट कि मेरा एड मेरा प्रोडक्ट है, बट उसकी कन्वर्जन कितनी आई, मेरा एड देखने के बाद कितने लोग बाहर गए प्रोडक्ट लेके भी आए, ब्रांड रिकॉल कितना रहा, ब्रांड अवेयरनेस कितना रही, वो भी हमने पढ़ लिया था. एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करते हैं, रिकॉल टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. Not many companies would go into that nitty-gritties. We have startups also, तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, इतनी डेवलप रिसर्च टीम्स ही नहीं है. अगर मेरी खुद की शॉप है, खुद का स्टार्टअप है, तो क्या वुड आई हैव सो मच मनी टू स्पेंड ऑन दीज एक्टिविटीज? नो. तो अगर कोई सेल्स पर्सन, पर्सनल सेलिंग हम कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं कॉन्टैक्ट से कस्टमर में हूँ, तो एक तो मेरे को कस्टमर क्या कहते हैं, हमारे कस्टमर का फीडबैक पता चल जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नोइंग द फीडबैक. क्या कर सकते हो? लॉयल कस्टमर्स को वही कन्वर्जन रेट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे को ट्रेन ही उस तरह से गया है. कई बार आप देखते हो, आप मार्केट में जाते हो, सेल्स पर्सन होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, स्पेशली इन द मार्केट वेयर इन इट इज रिलेटेड टू हाउ यू लुक, हाउ यू फील. मतलब कई बार होता है ना, आपने कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते, आप सपोजिंग ज्वेलरी खरीद रहे हो, राइट, एंड यू आर इन दैट सिचुएशन एंड द डायलेमा सिचुएशन. जो कंज्यूमर परचेज प्रोसेस क्या होता है, इवैल्यूएशन एंड ट्रायल वाले फेज में हो, आप ट्राई करके देख रहे हो कि whether or should I buy it or not buy it. ठीक है, you are evaluating, you are contemplating, you are doing information search, part of the consumer buying process. But once the salesperson says कि ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इससे अच्छा नहीं मिलेगा, तो that is a type of conversion. ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? वेरी गुड, वेरी गुड. एक अब हाँ, नेक्स्ट स्टेप पे भी यही आ रहा है, रिलेशनशिप मार्केटिंग भी हम कर सकते हैं कंज्यूमर्स के साथ. ठीक है, सो एक तो इंपॉर्टेंट होता है कि फीडबैक मेरे को मिल रहा है कस्टमर्स का. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्टोर पे जाते हो कोई पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट लेने, आप एक एलजी के स्टोर पे जाते हो, हर बार आप वहीं से एलजी का एक लैपटॉप लेते हो, लैपटॉप ऐसी कुछ भी लेते हो, ठीक है. बट कई बार आप गए, आपने सेल्स पर्सन को बोला यार पिछली बार जो लैपटॉप आपके यहाँ से परचेज किया था वो बहुत हैंग हो रहा है, या वैसे ही हैंग हो रहा था, फटाफट उसके पास चले जाओगे कंज्यूमर कंप्लेंट में कि ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा, हम कोई और प्रोडक्ट ले रहे हैं. सो दैट इज द टाइप. इट कैन बी अ पॉजिटिव फीडबैक एंड अ नेगेटिव फीडबैक, एंड दैट कैन इजीली बी कम्युनिकेटेड टू द कंपनी कि हमारा प्रोडक्ट सही नहीं चल रहा है, कंज्यूमर क्या बोल रहा है. कई बार हम आपने देखा होगा क्रोमा वगैरह पे आप जाते हो, आप क्या बोलते हो, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, वहां पे सेल्स फोर्स मैनेजमेंट हर एक कंपनी वालों ने अपने लोग लगा रखे होते हैं, है ना. तो उससे हम क्या करते हैं, हम कई बार हम ऐसा कंज्यूमर होता है कि सपोजिंग मेरे को एयर प्यूरिफायर खरीदना है, मैं सारे देखूंगी, डायसन का इज 1 लाख, फिलिप्स का 15-20,000 में आ जाता है, उससे कम 10,000 में भी आ जाता है. तो द मार्केट, द सेल्स पर्सन वुड अंडरस्टैंड कि मार्केट किस तरह की है, कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरह का है, किस टाइम पे किस तरह का. अगर नवंबर के टाइम पे आप जाओगे एयर प्यूरिफायर खरीदने में, आउट ऑफ स्टॉक होते हैं एयर प्यूरिफायर बिकॉज द पोल्यूशन लेवल्स आर वेरी हाई. ठीक है, तो वो एक साइक्लिसिटी, कंज्यूमर का बिहेवियर, फीडबैक क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच अंडरस्टैंडेबल व्हेन आई एम डायरेक्टली सेलिंग इट टू द कंज्यूमर. यस, टारगेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग. जब तक आप अपना टारगेट आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप मार्केट कैसे करोगे. मास मार्केटिंग पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में. फिर हमने कहा सेगमेंटेशन करेंगे. सेगमेंटेशन करते हैं तो हम अपने कंज्यूमर्स को बेटर जान पाते हैं. बहुत लेमन एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. आप एमबीए कर रहे हो, सब फर्स्ट ईयर में आपको सबको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. इन द सेकेंड ईयर यू आर आस्क्ड टू चूज योर इंटरेस्ट. आप मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स लेते हो, आप फाइनेंस के सब्जेक्ट्स लेते हो. सो दैट इज व्हाट, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट लेवल. सो दैट इज द सेगमेंट, और उसी सेगमेंट का आपको
you get a resource person that is telling you about that segment. ठीक है? What if you are not a marketing person and you are sitting in a finance class? Is that the desired audience for a finance teacher? No. तो सिमिलरली मार्केटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हम एक सिमिलर टाइप ऑफ सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे को अपना प्रोडक्ट सिर्फ फॉर एग्जांपल सोप है, फीमेल्स को ही बेचना है. देखो वो तो दे हैव अ मास मार्केटिंग, ठीक है, बट उसमें भी सेगमेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं. मार्केट कैसे कर रहे हैं? गर्मियों के सीजन में, सर्दी में बिकता है रुअफ़ज़ा, दैट इज सीजनैलिटी, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ सेगमेंटेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल रही, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. हाँ, देखो आप B2B में भी जाओगे, है वो बिजनेस टू बिजनेस सेल, बट अगर आप एक सेल्स पर्सन बन के जाओगे तो वहां पे भी एक कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ ही इंटरैक्ट कर रहे हो. तो जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार सेल्स में क्या होता है, यू डोंट गेट इमीडिएट रिजल्ट्स एंड दैट इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स फोर्स पीपल बैक आउट. हम तो सेल कर रहे हैं, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हम हर रोज जाके लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारी तो सेल ही नहीं हो रही. सो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू डू इट. तो चाहे B2B करो, B2C करो, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, दे हैव टू बी वेरी गुड, वेरी कन्विंसिंग, वेरी पर्सुएसिव, एंड एट द सेम टाइम यू शुड हैव दैट स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर. कई बार आप देखते होंगे बहुत टैक्टफुली सेल्स पर्सन कंज्यूमर को समझ के बिफोर यू आस्क वो ट्राई, दे एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस एक प्रोडक्ट आपको दिखाया, उनको समझ आ जाता है कि इस कंज्यूमर को किस टाइप का प्रोडक्ट ही हमें बेचना है, तो आपको एक की जगह 10 भी बेच देते हैं वो. देखो जब हम रुअफ़ज़ा जैसे FMCG प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें आई थिंक सेल्स फोर्स का बहुत ज्यादा पिचिंग का टू एन इंडिविजुअल कस्टमर इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, बट अगेन इफ आई टॉक ऑफ FMCG प्रोडक्ट, उसमें जो हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कामा आयुर्वेदा, फॉरेस्ट एसेंशियल वगैरह के आउटलेट्स देखे होंगे, तो वो दे आर ऑल्सो सेलिंग द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, राइट. बट अगर हम एक लाइफ बॉय या लक्स का साबुन खरीदते हैं, वो 15-20 रुपए का है, सो एवरीवन वुड बाय इट, इट हैज अ वेरी वाइड ऑडियंस. तो उसमें मेरे को विजिबिलिटी का ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, उसमें एड्स, जैसे आप टीवी एड्स की बात कर रहे हो, उसमें वो ज्यादा इफेक्ट करिए क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत वाइड है, मेरा प्रोडक्ट इतना स्पेशलाइज्ड नहीं है. बट एट द सेम टाइम इफ आई टॉक ऑफ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, लाइक इफ आई टॉक ऑफ अ सोप फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल, वो सोप 10 रुपए की बजाय आपको 1000 रुपए का, 500 रुपए का, 600 रुपए का बेच रहे हैं. So it is very important at that time to convince the audience that what is different from a 500 rupee soap and a 10 rupee soap. हर फॉर्म में आप कस्टमर, आजकल तो हम बात करते हैं कि कस्टमर इज द किंग. वी टॉक ऑफ अ रिएक्टिव मार्केटिंग, कि कस्टमर क्या चाह रहा है उसके बेसिस पे हम अपने मार्केटिंग प्रोग्राम, चाहे वो डिजिटल हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, उसको टेलर करते हैं. डिजिटल मार्केटिंग में भी तो हम यही कर रहे हैं. कोई फिजिकली कोई पर्सन नहीं है, बट मैसेजेस के थ्रू, ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू, मेरी पोस्ट कितनी दिखी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो. तो इन टुडेज वर्ल्ड इट इज ऑल अबाउट द कस्टमर्स. दे शुड, हाँ, एंड एज अ मार्केटर यू कैन एक्सपैंड योर सेगमेंट्स ऑल्सो. इट इज नॉट कि एक प्रोडक्ट, जब आई डोंट नो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, बट एक प्रोडक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ एक ही सेगमेंट को बेचेंगे. जब ये पेन बना होगा तो बेसिकली क्या सेगमेंट होगा इसका, पेन का क्या सेगमेंट होता है, बोर्ड मार्कर का. टीचर्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, किड्स. इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी इसमें ज्यादा होती है कि बल्क में, अब ऐसे बल्क में खरीदूंगा
तो इट इज मोर ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंक वेयर इन इट इज अ बल्क रिक्वायरमेंट, और इंडिविजुअल स्टूडेंट स्कूल कॉलेजेस में बल्क परचेजेस भी कर सकते हैं. बट इज इट रिस्ट्रिक्टेड कि अगर कॉर्पोरेट में कोई बोर्ड मीटिंग हो रही है तो वो पेन यूज नहीं कर सकते? दैट इज ऑल्सो अ सेगमेंट टू इट. ठीक है. सो वन प्रोडक्ट कैन बी यूज इन अ वेराइटी ऑफ सेगमेंट्स. सिमिलरली व्हेन आई टॉक ऑफ सोप्स, व्हेन आई टॉक ऑफ शैम्पूज, मल्टीपल बेसिस पे एक सेगमेंटेशन हो सकती है. कुछ मार्केट करेंगे कि दिस सोप इज फॉर मेल्स, दिस इज फॉर फीमेल्स. कुछ उसकी यूजेबिलिटी पे मार्केट करेंगे कि इट इज फॉर डैंड्रफ, इट इज फॉर स्मूथनेस ऑफ हेयर, हेयर फॉल. ठीक है. एज के बेसिस पे कर सकते हो, चाइल्ड के लिए है, मिड एज के लिए है. तो एक प्रोडक्ट को आप डिफरेंट तरह से सेगमेंट कर सकते हो. और सेगमेंटेशन के 4 वेरिएबल्स क्या होते हैं? What are the variables or basis of segmentation? Very good. Demography, geography, psychography और behavior. ठीक है. सो इन 4 वेरिएबल्स पे हम सेगमेंट करते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी सिर्फ एक ही वेरिएबल पे कर रही होती है. दैट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल. इट इज अ थ्योरी थिंग. एंड व्हेनेवर, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वर्किंग, अगर आप काम भी कर रहे होगे कभी किसी कंपनी में, तो वहां पे जाके यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एंड से कि या इस पेन का हमने ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन करें. दैट इज टू गिव यू अ बेसिक आइडिया कि किस किस तरह से हम अपना टारगेट ऑडियंस को बना सकते हैं. ठीक है. सो इज इट क्लियर टिल हियर एवरीवन? Getting the basic concepts of personal selling and Salesforce? It would depend from company to company. कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे वो सेगमेंट्स डिसाइड करते हैं. प्रोडक्ट अलग अलग, जैसे एफएमसीजी कंपनी हो गई आपकी, एचयूएल है, टाटा है, आईटीसी है, एक ही कंपनी है. डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस है. डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. हर के लिए डिफरेंट सेगमेंट है. हम्म. हाँ. देखो डिस्ट्रीब्यूशन. हम्म. हाँ सर, इस केस में सेल्स फोर्स का रोल आता है आपके रिटेलर पॉइंट पे. हाँ जी, वो तो करेक्ट. लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फाइंड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलना भी इट इज नॉट नेसेसरी. अगेन एट दैट टाइम यू हैव टू हैव दैट नेगोशिएशन स्किल. वो भी आपकी मार्केटिंग और सेल्स फोर्स का ही काम हो जाता है. और कई बार जैसे एक मिनट, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, रूअफ़ज़ा वगैरह की, इट इज नॉट, क्योंकि रूअफ़ज़ा तो बहुत बड़ा ब्रांड नेम है. कई बार कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई नई टाइप ऑफ स्क्वैश या कुछ आता है, तो आप छोटी छोटी रिटेल आउटलेट्स पे भी देखते हो वो छोटा सा काउंटर बना देते हैं, या वो आपको टेस्टिंग कराते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आया. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्स. फिर सेल्स पर्सन वुड गो देयर. आउटलेट्स है, जैसे छोटे आउटलेट्स में भी कई बार उनके शेल्फ पे रखा होता है, या बिग बाजार जैसा आप आउटलेट्स में जाते हैं, शेल्फ स्पेस बाइंग, कितना दिख रहा है आपको वो प्रोडक्ट. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्स फोर्स टीम. क्या कह रहे हो? सिलेंडर के साथ. सो दैट इज मोर ऑफ अ प्रमोशन मेक्स. मैंने नहीं देखा ये, बट विजिबिलिटी चाहिए उनको. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर सेगमेंट भी हम ट्रैक करते हैं, सो चैनल क्रिएशन भी इट इज वेरी डिफिकल्ट. हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हर किसी कंपनी के पास नहीं आता. सो टू हैव अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो कंपनी से कोई रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, बट उसने भी कभी ना कभी उन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अपना क्रिएट किया होगा. सो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ सेल्स. उस केस में आप बोल सकते हो कि B2B सेल्स हो गई. है तो पर्सनल सेलिंग ही, बट एक बिजनेस एक बड़े छोटे बिजनेस के साथ कॉन्टैक्ट करे रादर देन द एंड कंज्यूमर. एक मिनट. हम्म.
सेल्स, हाँ, सो सेल्स तो इट इज इम्पेरेटिव, हर लेवल पे आपको करनी है. तो उनके सेल्स उनके कस्टमर्स होते हैं जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, यूजुअली दे आर नॉट वेरी इनटू सेल्स ओरिएंटेड, बट ऑल द प्राइवेट बैंक्स, उनका अल्टीमेटली होता है कि अकाउंट खुलवा दो, और हाँ, वो सब सेल्स का पार्ट है. दैट इज ऑल सेल्स. तो तभी तो मैं कह रही हूँ कि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट या जो पर्सनल सेलिंग है, दैट इज द बिगेस्ट सेगमेंट. इंडियन मार्केट में तो है ही है, अगर हम यूएस मार्केट में बात करें रिसर्च के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, इट इज द पैरामीटर या इट इज द टाइप ऑफ प्रमोशन मिक्स जो कि आपको मैक्सिमम सेल्स ला के देगा आज की डेट में भी. देखो, नहीं, देखो, it is a two way approach, it is a two pronged approach. I say that हमारी मार्केटिंग स्टार्ट होती है गोल सेटिंग, सेगमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर हमने मार्केटिंग मिक्स लगाया, प्रमोशन मिक्स लगाया, प्रमोशन मिक्स के थ्रू मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चला गया. अब जो पर्सनल सेलिंग के थ्रू या व्हाटएवर मेथड्स, फीडबैक फॉर्म, सर्वे, इट कैन बी एनीथिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू भी हमें रिव्यूज आ रहे हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ मेरा प्रमोशन हुआ, हमारे को कंज्यूमर का बिहेवियर उसके थ्रू हमने स्टडी किया, रिएक्शन स्टडी के, फीडबैक लिया. So that is again helping me to find or expand on rework on my target. ठीक है? Are you getting the point? एक बार हमने डिसाइड तो कर ही लिया ना, वो हो सकता है मेरी पास्ट सेल्स ट्रेंड, पास्ट कंज्यूमर बिहेवियर, पास्ट, उसके बेसिस पे भी आई कैन टारगेट. आई शुड ऑलवेज डू अ मार्केट रिसर्च. अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हूँ, टेस्ट मार्केटिंग होती है कि ये प्रोडक्ट किसके लिए जाएगा, बट एट द वेरी फर्स्ट आई शुड हैव सम आइडिया इन माय माइंड. मास मार्केट भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई रोल रीजन नहीं है कि आप मास मार्केट नहीं कर सकते, बट उसमें कंपनी की कॉस्ट ज्यादा लगेगी. ए बी टेस्टिंग. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फेसबुक मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है? तो आई हैव अ प्रोडक्ट एंड दैट इज अ शैम्पू फॉर डैंड्रफ, ठीक है, या फॉर सिल्की है फॉर एग्जांपल, ठीक है? मैंने एक फेसबुक एड चलाया, उसमें जब आप एड बनाते हो, सो दे आस्क फॉर टारगेटिंग कि ये एड किसके लिए है, कौन सी स्टेट में टारगेट करना है, कौन सा एज ग्रुप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो फिल्टर्स आप लगाते रहते हो एंड देन दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पीपल एंड उसके बेसिस पे आपकी प्राइसिंग होती है. गॉट इट? फर्स्ट केस, आई हैव नॉट आइडेंटिफाइड माय टारगेट मार्केट कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ शैम्पू इन फीमेल्स के लिए है या मेल्स के लिए है जिनको हेयर फॉल या ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, व्हाटएवर इज माय सेगमेंट. सो मैंने सबके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों के लिए वो एड चला दिया, ठीक है? वो एड सबको दिख रहा है, कंपनी की कॉस्ट चली गई. वो एड उसको भी दिख रहा है जिसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, उसको भी दिख रहा है जिसको नहीं है. every time a person might click on an ad, there is a cost to the company but there is no purchase. बट अगर वही एड मैं सेगमेंटेड लोगों को दिखाऊं जिनको प्रॉब्ली डैंड्रफ का इश्यू है, सो 1 करोड़ के बाद वो प्रॉब्ली वो हो सकता है 10 लाख पॉपुलेशन है, बट दैट इज द एग्जैक्ट पॉपुलेशन दैट इज लुकिंग फॉर सम डैंड्रफ कंट्रोल, ठीक है? सो दे वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन माय प्रोडक्ट, ठीक है? तो अगर उनका क्लिक थ्रू रेट है या मेरी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगी. तो इस केस में 1 करोड़ लोगों पे एड चलाया, मेरा खर्चा है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ और उस पर आया 10 लाख. कन्वर्जन इसमें हो गए दो लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा, इसमें खरीदा 0 ने. So that is why targeting is important. But again, if the company has money, you can test it. But हमें product fit हमेशा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए सोचते हो, आप शार्क टैंक वगैरह देखते हो, सो दे विल ऑलवेज आस्क ये प्रोडक्ट है किसके लिए, आप किसके लिए बना रहे हो. If you don't understand your customer, if you don't understand your market, I don't think the product can survive कितना भी वो अच्छा हो. मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केट की डिमांड क्या है वो एनालाइज करनी पड़ेगी. इंडस्ट्री को आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, पेस्टल एनालिसिस आप करते हो, आप वॉटर्स 5 फोर्सेस करते हो, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग की जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसमें हम यही सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं. तो उस मतलब आप कर सकते हो, बट यू वुड बी नॉट अ वेरी सक्सेसफुल मार्केटर इन दैट. करने को कर सकते हो.
मार्केट बनाना पड़ता है. आज से कितने साल पहले हमारा सबसे पहले एप्पल ने क्या लॉन्च किया था? छोटा सा उनका जिसमें आईट्यून्स, आईपॉड ही बोलते थे ना उसको, शफल, जिसमें सॉन्ग्स आते थे. उससे पहले क्या चलता था? वॉकमैन. बट इन दैट स्मॉल डिवाइस देयर वर कितने सारे सॉन्ग्स. वॉकमैन में क्या होता था? आपको कैसेट इंसर्ट करनी पड़ती थी, बल्कि सा होता था. तो पीपल वर नॉट हैविंग एनी आइडिया कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में हो सकता है. नीड, वांट, डिमांड, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मार्केट का, वो क्रिएट करना पड़ता है. आप क्रिएट कैसे करोगे? एडवर्टाइजमेंट के लिए. उसके लिए भी उनको एक टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी कि वो गाने सुनने वाली मेरी ऑडियंस कौन सी है. यंग बच्चे होंगे या पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स, हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स, इस तरह की ऑडियंस को उन्होंने पहले टारगेट किया होगा. बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? आगे चलें. किसी को कोई डाउट अब तक? राइट डाउन. इसका थोड़ा सा लिख लो, सेल्स फोर्स और सेल्स पर्सनल के बारे में. सेल्स पर्सन और सेल्स पीपल और सेल्स फोर्स, ये सारी टर्म इनवेरिएबली यूज हो सकती हैं थ्रू आउट द सब्जेक्ट. हु रिप्रेजेंट, सेल्स पर्सन हु रिप्रेजेंट an important component of any company. Salesperson who represent an important component of any company are expected to understand the customer needs. Are expected to understand the customer needs and make contribution to customer success and make contribution to customer success. Customer success. ठीक है. अब दो टाइप की सेलिंग होती है, रिलेशनशिप सेलिंग एंड ट्रांजैक्शनल सेलिंग. हाँ, रिलेशनशिप सेलिंग एंड ट्रांजैक्शनल सेलिंग. रिलेशनशिप सेलिंग को हम रिलेशनशिप मार्केटिंग भी बोलते हैं. रिलेशनशिप सेलिंग को हम रिलेशनशिप मार्केटिंग भी बोलते हैं. सो इट इज सेड कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो है, जैसे अभी हमने बात की थी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो है हमारी,
उसमें it is difficult to sell the products directly to the consumer. Why? प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट में डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है. व्हाई इज इट सो? कॉम्प्लेक्स है, चेंजिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंपटीशन बहुत जल्दी आ जाता है किसी भी प्रोडक्ट मार्केट में. और आजकल हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी बेस में कंपटीशन इज कमिंग वेरी फास्ट. सो एप्पल की अगर मैं बात करूं, एप्पल ने जो अपना टैबलेट, मॉडर्न टैबलेट कंप्यूटर निकाला था 2010 में निकाला था, एंड इट वाज द फर्स्ट कंपनी. सो इट वाज वेरी इजियर फॉर द मार्केटर्स देयर और द पर्सनल सेलर्स देयर टू सेल द प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं था. बट विद इन फ्यू मंथ्स सैमसंग, मोटोरोला सबने निकाल दिया, एंड देन द मार्केट कंप्लीटली चेंज्ड. क्या वो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताएंगे कंज्यूमर्स को? तो उस केस में what is more important is relationship marketing, wherein based on your product knowledge, your information that you are giving to the customers, you try to build a connect with the customers so that they are coming back to the organization itself. ठीक है? वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में, दैट इज वन वे. अनदर वे इज टू डेवलप अ रिलेशनशिप मार्केटिंग. सो इसकी डेफिनेशन लिख लो. टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स and to provide customers with value added solutions to their problems, and to provide customers with value added solutions to their problems. Salespersons must develop close long-term relationships. Salesperson must develop close long-term relationships with their customers. These relationships are built on cooperation. These relationships are built on cooperation, trust, commitment, cooperation, trust, commitment, and information. Cooperation, trust, commitment, and information. The process by which a firm builds on cooperation. The process by which a firm builds long-term relationship. The process by which a firm builds long-term relationship with the customers for the purpose of creating mutual competitive advantage, for the purpose of creating mutual competitive advantage, is called relationship marketing or relationship selling. ठीक है? Got the concept of relationship marketing. So on the basis of relationship marketing, what does a company do? It targets a customers, ठीक है? And on the basis of the information, cooperation, trust, the company they have a strong connect with the selected
customers, and that is their competitive advantage. That becomes their competitive advantage. ठीक है. और इसमें क्या होता है, जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में देख सकते हैं आप, कई बार तनिष्क वगैरह इस तरह के आउटलेट्स आते हैं, देयर आर रिलेशनशिप मैनेजर्स. ईच रिलेशनशिप मैनेजर वुड गेट अ फ्यू सेट ऑफ कस्टमर्स. जितनी बड़ी कंपनी है, जितना बड़ा है, तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स वुड स्टार्ट डिक्रीजिंग, और आपको उनके साथ कनेक्ट बनाना रहता है, उनसे बात करनी होती है. कई बार आप देखते हो CRM सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके बर्थडेज पे, आपके एनिवर्सरीज पे मैसेजेस आते हैं. दैट आर ऑल द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग. यू बाय अ प्रोडक्ट, आफ्टर ए फ्यू डेज आपको फोन भी आता है कंपनी से कि प्रोडक्ट सही चल रहा है नहीं चल रहा. वो सब आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग का पार्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल सेलिंग. ट्रांजैक्शन सेलिंग. ट्रांजैक्शन सेलिंग. ट्रांजैक्शन सेलिंग की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस इट फर्दर. So write down, transaction selling is a type of selling where the salesperson, transaction selling is a type of selling where the salesperson focus on one time immediate sale of the product immediate sales of the product. So sometimes कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, या जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर में आप देखते हो कि क्लोजिंग आने वाली होती है, तो उसमें बहुत एग्रेसिव सेलिंग करती है कंपनीज. उनका एम ये तो होता ही है कि हमें रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना है, बट एट द सेम टाइम बहुत एग्रेसिव सेलिंग करते हैं कि एक टारगेट को मीट करने के लिए वन टाइम सेल हो जाए एंड टर्नओवर. हाँ, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ योर एग्रेसिव सेलिंग. कि एक बार आपने इंश्योर करा लिया किसी को, तो हेल्थ इंश्योरेंस दिला दी किसी को, या लाइफ इंश्योरेंस दिला दी, तो ट्रांजेक्शनल सेलिंग है, वन टाइम है. अगेन आजकल की अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी से इंश्योरेंस भी लेते हो, इफ यू बाय एन इंश्योरेंस फ्रॉम अ गुड मिडलमैन और अ गुड कंपनी, सो वो लोग भी ट्राई टू कल्टिवेट दैट कस्टमर रिलेशन. क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी कंपनी विदाउट एक कस्टमर रिलेशन के नहीं चल सकती. आपने खुद भी देखा होगा, इंश्योरेंस वगैरह अगर आप लेते हो, तो प्रॉब्ली एट द टाइम मैंने आपका प्रीमियम मेच्योर होने वाला होता, तब तो वो आपको जरूर कॉल करते ही हैं एक महीने पहले कि आपका प्रीमियम का टाइम का कॉल आ रहा है. तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. अगेन इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ रिलेशनशिप मार्केटिंग. कर देते हैं आपको कई बार वो बर्थडे पे विश, कोई मैसेज भेज देते हैं, या रिमाइंडर मार्केटिंग की तरह भी वो काम करता है. वन, नथिंग इज बैड इन इट. जिसका जॉब है दैट पर्सन इज डूइंग इट, सो नथिंग इज रॉन्ग. बट कुछ कंपनीज, आपने तनिष्क का एग्जांपल सुना होगा, ज्वेलरी ब्रांड है टाटा का. सो व्हाट दे डू, दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप पॉलिसी. तो वो थोड़ा नीश मार्केट को टारगेट करते हैं, क्योंकि तनिष्क के जो रेट्स वगैरह थोड़े से हायर होते हैं, उनके मेकिंग चार्जेस हायर होते हैं, जो हम पर्सनल अपने ज्वेलर्स वगैरह को जानते हैं. टाटा का ब्रांड है, ब्रांडिंग के चक्कर में डिजाइन उनके थोड़े यूनिक होते हैं. दैट इज द रीजन थोड़ा सा हायर सेल करते हैं वो अपनी ज्वेलरी को. बट उनका प्रोसेस ऑफ सेलिंग इज टोटली रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल एट डूइंग इट. तो वो क्या करते हैं, उनके पास भी एक मैनेजर या एक सेल्स पर्सन को असाइन कर देते हैं, जो कि सपोजिंग आई डोंट नो द नंबर ऑफ अकाउंट्स दैट दे हैंडल, 100-150 लोगों को हैंडल कर रहा है वो. सो एवरी टाइम you buy the product, you go to that particular person, usually आप जाते हो.
तो कोई भी उनकी स्कीम चल रही होती है दिवाली के आसपास, या उनका गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम है वेयर इन यू इन्वेस्ट 12th मंथ में यू कैन बाय द प्रोडक्ट, तो एक महीने का जो भी इंटरेस्ट वगैरह आपका हो जाता है वो सब ऐड करके एक तरह से वो आपको एक स्कीम देते हैं. सो दे आर वेरी एफिशिएंट. कोई भी स्कीम आएगा दे विल कॉल यू एंड टेल यू अबाउट द स्कीम, और आप जाओगे. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरस्टूड योर कि आप किस तरह की आपकी लाइकिंग है, किस तरह की आपकी चॉइस है, किस प्राइस रेंज में आप अपना प्रोडक्ट खरीदते हो, कहाँ पे वो आपका मेल्टडाउन पॉइंट आता है एज अ कस्टमर जहाँ पे आप प्रोडक्ट को ले ही लोगे. तो यूजुअली ऐसा देखा गया है, उसकी केस स्टडी भी है कि वहाँ पे दे आर सो दे गिव यू अ वेरी गुड एटमॉस्फेरिक्स की हम बात करें रिटेल मार्केट में एटमॉस्फेरिक्स बोलते हैं, बहुत अच्छा सा प्लेजेंट. यू गो देयर, दे कोविड के टाइम पर उन्होंने बहुत अच्छा किया था. यू विल गो देयर, दे चेक योर पल्स, दे चेक योर फीवर, फिर वो आपको हैंड सैनिटाइज कराएंगे, मास्क देंगे, फिर यू गो देयर, दे आस्क यू फॉर अ कॉफी. सो दे psychological aspect, they'll make you feel special. Coffee pilai, it is a peanuts for the company, but you as a consumer would feel special. And then they start showing you, they have understood आपका behavior वो समझ चुके हैं, आप किस तरह का ज्वेलरी पसंद करते हो, किस तरह का प्रोडक्ट पसंद करते हो, आपको उसी तरह के प्रोडक्ट्स दिखाते हैं. So that is a very good example of relationship marketing. कई बार relationship marketing irritating भी हो जाता है for the customers, for the people, कि बहुत ज्यादा हमें लगता है कि हमारे बिजी स्केड्यूल्स हैं और उस पर हमें बारी बारी लोग फोन करके पूछ रहे हैं. तो उस केस में ना ईमेल्स होती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, वेयर इन यू कैन रिस्पॉन्ड टू इट. ठीक है, तो इधर दोनों तरफ का डिफरेंसेस, दोनों तरह की सेलिंग में पता होने चाहिए. व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द टू टाइप्स ऑफ सेलिंग? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो हर प्रोडक्ट में होगा, बट हम ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप सेलिंग जो है दैट इज मोर, क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंट और मोर यूजफुल व्हेन आपका कुछ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा है. ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात की, ये जो टेक्नोलॉजी की बात की थी, मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया था. तो उन केसेस में क्या होता है, प्रोडक्ट बहुत इजीली चेंज हो रहा है, तो कंपटीशन में कैसे डील करूंगी? बारी बारी में इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं होता. तो उनके लिए ये रिलेशनशिप मार्केटिंग ही एक पार्ट ऑफ कंपटीशन हो जाता है. गेटिंग द पॉइंट, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आई वुड गो टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम, अगर मेरे पास 3 ब्रांड्स हैं, तनिष्क है, कल्याण ज्वेलर्स है, मालाबार है. तनिष्क की रिलेशनशिप मार्केटिंग सबसे अच्छी है. तो तीनों के प्रोडक्ट सिमिलर हैं, तीनों के प्राइसिंग भी सिमिलर हैं. हो सकता है तनिष्क के प्रोडक्ट्स में थोड़े डिजाइन बेटर हो, बट ओवरऑल सब कुछ मिलता जुलता सा ही है. बट मैं तनिष्क पे जाना प्रेफर करूंगी क्योंकि वहां पे एज अ कस्टमर आई फील प्रिविलेज्ड एंड स्पेशल. आई हैव दैट स्पेशल रिलेशनशिप. सो बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप मार्केटिंग तनिष्क हैज गेन्ड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. उनके कभी आपने एड्स भी देखे होंगे, वो इसी पे हैं, बहुत इस फैक्टर को प्रमोट करते हैं कि दे ट्रीट द कंज्यूमर्स इन अ वेरी गुड वे. कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, मार्केटिंग से बाहर जाके रिक्रूटमेंट एचआर पॉलिसीज की हम बात करते हैं, तो आजकल उस केस में भी एम्प्लॉयज को इंपॉर्टेंट फील कराना इज सो इम्पोर्टेंट. सो अगर आपको 2 पैकेज मिल रहे हैं, एक गूगल से मिल रहा है और एक फॉर एग्जाम्पल कोई और अदर कंपनी से मिल रहा है, सिमिलर पैकेज मिल रहे हैं, सो पीपल वुड ट्राई टू गो इन फॉर गूगल. वाई? क्योंकि वहां पे उनको एक एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय रिलेशन, कस्टमर जो उनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन है, वर्क लाइफ बैलेंस, वो ज्यादा मिल रहा है. सो वो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज वुड ओनली गो फॉर रिलेशन, और ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग इज लाइक अ वन टाइम सेल यू आर डूइंग. ठीक है, तो हो सकता है तनिष्क भी अराउंड दिवाली एंड धनतेरस टाइम दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन ट्रांजेक्शनल मार्केट, दे हैव टू मीट देयर टारगेट्स आल्सो, बट वो रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, तो फटाफट इसका एक डिफरेंशिएशन वाला टेबल बना लो, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग. रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, सॉरी सेलिंग नॉट मार्केटिंग, इसको सेलिंग लिख लो. आई होप मार्केटिंग और सेलिंग में सबको फर्क पता है. सो ट्रांजैक्शनल सेलिंग का मेरा एम क्या होता है? टू जनरेट न्यू अकाउंट्स.
To generate new accounts or new customers. रिलेशनशिप सेलिंग का होता है रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग अकाउंट्स, रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग अकाउंट्स. एवरीवन हैज रिटन गेट न्यू अकाउंट्स. और रिलेशनशिप का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो मेरे पास अकाउंट्स आ गए हैं वो किसी और के उसको रिटेन रहे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट लिख लो. ट्रांजेक्शन सेलिंग हेल्प्स इन गेटिंग द ऑर्डर. ट्रांजेक्शन सेलिंग हेल्प्स इन गेटिंग द ऑर्डर. एंड रिलेशनशिप सेलिंग हेल्प्स इन बिकमिंग द प्रेफर्ड सप्लायर. समझ आया जो अभी तनिष्क वाला मैंने एग्जांपल दिया था. इट इज हेल्पिंग यू बिकमिंग द प्रेफर्ड सप्लायर. यहां तक लिख लिया. इसका थर्ड पॉइंट लिखो. ट्रांजैक्शन सेलिंग में कट द प्राइस, रिड्यूसिंग द प्राइस टू गेट द सेल्स. reducing the price to get the sales. And relationship selling में it is pricing your product for profit. Pricing your product for profit. इसका क्या मतलब हुआ? इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? गुड. ट्रांजैक्शन सेलिंग में लिखो नेक्स्ट पॉइंट. मैनेज ऑल अकाउंट्स, मैनेज ऑल अकाउंट्स टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म सेल्स. Relationship selling is manage each account for long-term profit. Manage each account for long-term profit. Transactional selling में you sell your product to everyone. Transactional selling में you are selling your product to everyone. And relationship selling में you are concentrating on high profit potential accounts. You are concentrating on high profits potential accounts. Is it clear till now, everyone? Next topic is the nature of sales job. Next topic is nature of sales job. Nature. Nature of sales job. So हम सेल्स पर्सन की बात करते हैं. So there are different kind of products. So for different category of products or different kind of products, जो सेल्स पर्सन की जॉब है वो डिफरेंट होगी. डिफरेंट तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व, who is a salesperson of IBM would have a different kind of profile or sales criteria, sales selling
as compared from a person who is involved in selling a Mama's Earth product. So there are different kinds of sales, nature of the sales and different types of sales role and the responsibilities would change. Main aim तो same रहेगा कि हमें product को बेचना है, but product information, responsibilities, how do we convince, what are my targets, everything would be different. So on the basis of that, 6 कैटेगरीज में हम जो कंटेम्प्रेरी सेल्स जॉब है उनको 6 कैटेगरी में मेजरली डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द कंसल्टेटिव सेलर. कंसल्टेटिव सेलर फर्स्ट टाइप इज द कंसल्टेटिव सेलर. पहले इसको लिख लेते हैं, देन विल डिस्कस इट थ्रू एग्जांपल्स. दिस टाइप्स ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, this type of sales representative uses relationship selling techniques, uses relationship selling techniques to demonstrate how his or her company's product, to demonstrate how his or her company's product will contribute to customers' well-being, will contribute to customers' well-being or profit. These types of salesperson, they are creative. These type of salesperson are creative, problem solvers. These type of salespersons are creative problem solvers who serve as consultants, to their products, who serve as consultants to their products, to their customers. So can you give me examples of these type of sellers? Consultative selling. बट वो किस तरह से आपको से वो कर रहे हैं? ठीक है. सो ऑल दिस काइंड ऑफ सेलिंग वेयर इन कंज्यूमर किसी प्रॉब्लम के साथ गया. फॉर एग्जाम्पल आजकल आप देखते हो VLCC वगैरह में भी दे आर सेलिंग द स्किन ट्रीटमेंट्स एंड ऑल. So a customer would go with a certain kind of a problem, they would suggest certain kind of skin treatment, so that is a consultative selling. ठीक है. तो ऐसा B2B मार्केट में भी जब कंसल्टेंसीज होती हैं हमारी, ठीक है, तो जितनी भी कंसल्टेंसीज होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट्स आते हैं. So that is also a type of consultative selling. So there is a company called, so वो भी जब अपना सोल्यूशन सेल कर रहे होते हैं किसी कंपनी को कि हम आपके लिए स्ट्रैटेजी डिजाइन कर देंगे, हम आपका सपोजिंग मार्केटिंग फंक्शन नहीं वर्क कर रहा है या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंसल्टेटिव सेलिंग. ठीक है. They are trying to understand the problem of the client and then they give their
quotations and their solutions according to that. So 3M एक कंपनी है, उन्होंने IBM का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रीडिजाइन किया था. So that is a type of consultative selling. And again क्या होती है, दोबारा बोलो. प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो. 3M का बच्चा, 3M के बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है. इट इज अ वेरी बिग कंपनी, वाइड अम्ब्रेला के अंडर वर्क करती है, ठीक है. तो और जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो जो 3M थी, दे आर, इसमें हमने फर्स्ट लाइन में देखा था, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग. तो वाइल डूइंग द प्रोजेक्ट दे एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद द कंपनी. तो आप देखोगे कि वही कंपनी उनको बारी बारी प्रोजेक्ट भी देती रहती है. सो रिलेशनशिप मार्केटिंग इन दिस केस इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्लियर है कंसल्टेटिव मार्केटिंग. नेक्स्ट इज की अकाउंट सेलर. Key account seller. Key account seller is similar. पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे. डेफिनेशन इज वेरी क्लियर. This is similar to consultative sellers. Key account sellers are similar to consultative sellers. The only difference is that the key account sellers focus on a small number of big important customers. They focus on a small number of big important customers. ठीक है. तो की अकाउंट सेलर्स का क्या काम होता है? अगेन कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह जैसे होती हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, तो कुछ जो सेलर्स होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको बड़े बड़े क्लाइंट्स दे दिए जाते हैं कि आप उन्हीं के साथ इन्वॉल्व रहो. 2-3 क्लाइंट्स दे देते हैं कि उन्हीं के साथ इन्वॉल्व रहो और उन्हीं में फर्दर पेनिट्रेट करते रहो, उनकी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, आइडेंटिफाई करो, या उनसे रिपीट प्रोजेक्ट्स लेते रहो. ठीक है. सो दैट इज की अकाउंट सेलिंग. एक मिनट. हेलो, अच्छा, वैसे तो कोई वहां पे बैठा नहीं हुआ. जो लैप कैमरे को बच्चे सीधा कर दो. ठीक है सर. अब हेलो, अब ठीक है. हाँ हाँ, सीधा कर दिया. हाँ, बताना. ठीक है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ की अकाउंट सेलर, वेयर हम एक पर्टिकुलर सेलर को, एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को फ्यू की अकाउंट्स दे देते हैं, एंड देयर ड्यूटी इज नॉट टू फाइंड मोर अकाउंट्स. Their duty is to maintain relationship with the existing accounts and penetrate further deep into those accounts. Clear to everyone till now? Next is new business seller. Third category is new business seller. सबसे इंपॉर्टेंट होता है, न्यू बिजनेस नाम से समझ आ रहा है, इसका मेजर रोल क्या होता है? नए बिजनेसेस को, नए अकाउंट्स को फाइंड आउट करना और टारगेट करना. तो इसको लिख लो. द सेल पर्सन focuses on
prospecting for customers, prospecting for customers, and generating new accounts, and generating new accounts. ठीक है. सो बेसिकली उनका होता है कि न्यू अकाउंट्स को फाइंड आउट करो, उनके साथ एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करो, एंड वंस दिस इज डन, सो दीज टाइप ऑफ पीपल, न्यू बिजनेस सेलर, दे आर टर्न्ड इनटू द सेल्स सपोर्ट टीम फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंट. समझ आया? टेक कंपनीज में भी यही करते हैं कि हमने एक नया क्लाइंट लाया, उसको रिटेन किया, नया पहले न्यू बिजनेस सेलर आया, उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड किया, उसको एस्टैब्लिश किया. जब वो एस्टैब्लिश हो गया तो अब इसका काम खत्म हो गया, इसको और लीड्स नहीं लानी. एट मेनी टाइम्स, हमेशा नहीं होता, ये इस कंपनी के साथ एक सेल्स सपोर्ट टीम के साथ काम करते हैं. गॉट द पॉइंट? ठीक है. और जब ये प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो गया, एक बार तो नहीं, एक बार के लिए सेल्स सपोर्ट बन जाता है. वंस इट इज प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड, द बिजनेस, ए बिजनेस जो लाए थे प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो गया. सो आफ्टर दैट साइकिल इज कंप्लीट, दे मूव ऑन टू फाइंड अ न्यू बिजनेस, जो कि इनका रोल होता है. तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग इनको यहाँ पे करनी रहती है. ठीक है. नेक्स्ट इज सेल्स सपोर्ट टीम. सेल्स सपोर्ट सेल्स पर्सन. Sales support. So they support the actual selling. These salesperson, they support the actual selling done by representatives ठीक है. support personnels perform sales promotional activities. Support personnels perform sales promotional activities and work with customers in training and educational capacities. Educational capacities. At times, these salespersons, can be brought into other teams. At times, these salespersons can be brought to other teams to assess customer needs, and provide information before the sales. ठीक है. कुछ कंपनीज में जब ये जो सेल्स सपोर्ट टीम है कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के लिए देखती है, उनको हम सेल्स इंजीनियर्स भी बोलते हैं. ठीक है. दीज आर ऑल्सो नोन एज सेल्स engineers when they have a certain knowledge for a specialized product. ठीक है. तो सेल्स सपोर्ट टीम का मेजर रोल क्या होता है कि सेलिंग किसी और ने की,
ये बेसिकली एजुकेशन और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ट्रेनिंग देनी है, उन सब में सपोर्ट करते हैं. इनको कई बार और टीम्स में जैसे कंसल्टेटिव या की अकाउंट में भी डाला जाता है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स. वो रोल करके दे कम बैक टू देयर ओन company, own needs. Fifth category is missionary sales. Missionary sales. Missionary salespeople. Missionary salespeople work for a manufacturer. Missionary salespeople work for a manufacturer. Calling on customers, comma, calling on customers to provide product information and promote information about the product and generally promote and generally promote goodwill about the product and generally promote goodwill about the product. ठीक है, तो मिशनरी सेलर्स क्या होते हैं? देयर मेन रोल इज टू inform, they call a prospective set of clients and then they tell them about the information, they promote the product, they promote the goodwill of the product towards target customer. और उनसे वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी कंपनीज जो होती हैं, तुम्हारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर गोइंग टू द डॉक्टर्स, दे आर प्रमोटिंग अबाउट the medicines to the doctors. The doctors will prescribe a medicine, and the final customer will then go to the seller to buy that particular product. They will go to that particular pharmacy to buy that particular product. Last is delivery sales. Last kind of selling is delivery sales. इसमें लिखो these are maintenance salesperson. These are maintenance salesperson that facilitate sales to consumers, that facilitate sales to consumer or to business accounts that have already been established. To business accounts that have already been established. Delivery sellers take orders. Delivery sellers take orders, but they do not engage. Delivery sellers, they take orders, but do not engage in creative problem solving as the consultative or the key account sellers do. As the consultative or key account sellers do.
ठीक है. So basically इनका major role is to deliver the product. For example, representatives from any FMCG company like Coca-Cola, their aim is to go to that particular shop to deliver the product. But उनका बहुत ज़्यादा role direct selling में नहीं होता. So these are the 6 types of job roles or the job sales force which we are talking about. Everyone is clear till now? Any doubt till now? Last topic for today's अंदर रख लिया तुमने. Last topic, how is the sales job different from other kind of jobs? How is it different from other kind of marketing jobs or other kind of management jobs? सारी चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके बस एक पॉइंटर्स में लिख लेते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing a firm's marketing strategies in the field. They are responsible for implementing a firm's marketing strategy in the field. They are responsible for generating, second point, they are responsible for generating revenues that are managed by, they are responsible for generating revenues that are managed by financial people and used by product people. ठीक है, यहां तक लिख लिया. नेक्स्ट राइट डाउन, सेल्स पर्सन represent their company to the customers and to the society in general. ठीक है, vice versa, they also represent the customers to their companies. Salesperson represent the customer to their companies ठीक है. salesperson operate with little or no direct supervision. Salesperson operate with little or no direct supervision and require a high degree of motivation. ठीक है. नेक्स्ट इज सेल्स पर्सन फ्रीक्वेंटली फेस रिजेक्शन. ठीक है. लास्ट पॉइंट, सेल्स पर्सन नीड मोर टैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस. टैक्ट, TACT, टैक्टफुल जो होता है,
and social intelligence than other employees on the same level in the organization. ठीक है. इसमें एक चीज और होती है, जो सेल्स फोर्स होती है, दे हैव टू फेस कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट, सेल रोल एम्बिग्विटी more as compared to other people in the organization. ठीक है. So in today's class we have discussed about what is Salesforce, what is Salesforce management. We have talked about personal selling, we have talked about personal selling, relationship selling, and transactional selling. We have talked about the differences between two, and we have talked about the various natures of the sales role: consultative selling, key account, missionary selling, support team. All these things we have talked about, and finally we have talked about what is the nature of the sales force profile. So next topic, it is a big topic, that how do we manage, what are the different roles, that we are going to start in the next class. Any doubt anyone has till now? कुछ भी डाउट है तो पूछ लो. यू कैन जस्ट गो थ्रू योर नोट्स एंड आस्क फॉर एनी डाउट्स. ठीक है. ये यूनिट 1 था. यूनिट 1 का भी कुछ पार्ट हुआ है. प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट क्लास विल वाइंड अप विद द यूनिट 1. और इस सब्जेक्ट में वी हैव 5 यूनिट्स. ठीक है. कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है. थैंक यू एवरीवन. ओके. हु हैज द अटेंडेंस शीट? सब फिल कर लो एक बार.